नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज का खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में क्या क्या होता है ये सब जानते हैं, लेकिन जब एक देश और उस देश के मुखिया को पड़ोसी देश का एक छोटा सा मंत्री ऐसी भाषा का उपयोग करे जिसपे पूरे देश में बवाल मच जाए, तो चर्चा का विषय बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी पर। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी हैं, कांग्रेस के मनोज फुलेरा जी हैं और इनके साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम स्कॉलर रहेंगे डॉक्टर रहमान। लेकिन इनके चर्चा शुरू से करने से पहले मैं आपको सुनाऊंगा उनका बयान और उस पे आई टिप्पणी को। सीधे मैं आपको लेके चलता हूं बयान पे। The fact of the matter is, Osama bin Laden is dead. He was never a Pakistani. I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. We have proof that your government facilitated a terrorist attack in Pakistan. So I don't see how Pakistan is the epicenter of terrorism. बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। Dear Bilawal Bhutto, I know you've just been schooled by the External Affairs Minister of India recently, but I guess you need another lesson or two. No, you're not the victim of terror. You're the victim of your own actions. We call it karma in India. Hillary Clinton used a better adage that you might probably understand. You cannot keep snakes in your backyard and expect them to only bite your neighbor. They will come for you. Unlike your nation, Bilawal, we have elections. We elect our Prime Minister. I know that concept sounds alien to you, that he's not a puppet of the army and the deep state. How would you know when none of your Prime Ministers in Pakistan ever get to complete a full term in office? You're probably unaware of the concept of a free and fair judiciary too. So you resort to stale propaganda and hackneyed expressions that have been rejected in the court of law to minor Hindu girls in Pakistan, to temples and gurudwaras in Pakistan. And before you speak about the Muslims of India, take a deep, hard look. Who's killing the Shias and the Aga Khanis in Pakistan? Who is the butcher of Baluchistan? Who's persecuting the Ahmadiyas? Who is the butcher of the Uyghur Muslims? Who's putting them into Hitler-inspired hate camps? But alas, the biggest perpetrator of human rights is your biggest benefactor. So you won't have the courage to speak up. Finally, keep your dossier to yourself. All you need to do is close your eyes and imagine. When you talk about the CEOs of top global companies and leaders of free nations, you picture an Indian, a person of Indian origin. Satya Nadella, Sundar Pichai, Rishi Sunak. And when you talk about the CEOs of top global terror outfits, it's always a person linked to Pakistan. Hafiz Saeed, Masood Azhar, Lakhvi. But every सर्वनाक बयान है और एक विदेश मंत्री अपने पड़ोसी के प्रति, देश के ऐसे नेता के प्रति जो आज विश्व स्तर पर एक अपना स्थान रखते हैं, एक बहुत ही भर्त्सनापूर्ण है और पूरे देश के अंदर आज भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है। और हम आज पुतला जला रहे हैं ये संदेश देने के लिए कि बाज आए पाकिस्तान, बाज आए पाकिस्तान। और इस बयान की प्रतिक्रिया पाक ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर भी है। आज वहाँ आंदोलन चल रहे हैं, लोग पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी भर्त्सना कर रहे हैं। देखिए वो
उनके बारे में कुछ भी कहना आज, क्योंकि आज आक्रोश रैली का दिन है और आक्रोश रैली में आज हम पूरी तरह से पाकिस्तान के विरुद्ध इस विषय पे चर्चा तो नहीं बनती, लेकिन आज चर्चा करनी पड़ रही है। पड़ोसी मुल्क बिलावल भुट्टो, एक ऐसा नाम जिसने राजनीति मेहनत से नहीं कमाई, परिवार से मिला, और उसके बाद एक ऐसी शख्सियत पे तंज कसता है और ऐसी भाषा का उपयोग करता है कि जिससे पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव वर्मा जी के पास चलेंगे। संजीव वर्मा जी, आपने सुना होगा आज बिलावल भुट्टो की जो भाषा का उपयोग उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया, पहली टिप्पणी आपकी। निश्चित रूप से एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बात का ध्यान नहीं किया कि मैं बड़े नस्ल बयानबाजी और टिप्पणी कर रहा हूँ, वो भी उस भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिनको अभी विगत दिनों G20 के देशों ने अपने अध्यक्ष के रूप में किया, जो इसके लिए रशिया और यूक्रेन जैसे बड़े देश, बड़े देश जिन्हें मैं कहूँगा महाशक्ति, जिन्हें अपनी मध्यस्थता करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मध्यस्थता करके हमारे युद्ध को आगे बढ़ाएं, और उससे बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि पाकिस्तान की भारत के प्रति क्या मानसिकता है ये किसी से छुपा नहीं है। उससे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस जो हमारा एक विपक्षी दल है भारत का, उसने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सिंह के खिलाफ इस तरह की जो बयानबाजियां करी, तो मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी, एक मिनट संजीव वर्मा जी लौटेंगे आपके पास। मैं एक लाइन की बात करूँ, जिस प्रकार से कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी लगातार माननीय मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती रही, और जो उनके शब्द थे कुल मिला के कमोबेश इस बयान में और सोनिया गांधी जी के बयान में बहुत अधिक मैं समानता देखता हूँ। संजीव वर्मा जी, मैं लौटूंगा। देखिए, राजनीति अपनी जगह सही है, लेकिन आज जो मुद्दा हम लेके उठे हैं, जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। लेकिन आपका जो कहना है, कांग्रेस से सीधे आप आ जाते हो, पाकिस्तान ने जो बात कही हम उस पर चल रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह की बयानबाजी और ऐसे देश पड़ोसी मुल्क जिससे हमेशा का आंकड़ा रहा हो और उसके बाद मामला गर्म हो, विदेश मंत्री अगर ये बात कहते हैं तो कांग्रेस का क्या रुख है? सीधे शब्दों में देखिए सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जी का बयान आया, सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने अपना बयान रखा, और जो उन्होंने अपने बयान में रखा, हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए दूसरी चीज कही। और ऐसा नहीं है कि पहली बार का आ गया, जब उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला वो हर समय ये मुद्दे उठाते आए हैं। और ये बात तब फनी हो जाती है जब पाकिस्तान जैसे देश का फॉरेन मिनिस्टर भारत, जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उन जरूर जैसे देश के लिए इस तरह के बयान के, तो मुझे लगता है कि पहले अपना देश सुधार लीजिए, अपनी इकोनॉमी सुधार लीजिए, अपने जो आपने उसामा बिन लादेन को शरण दी है, टेररिस्ट को शरण दी है, उसे संभाल लीजिए, तब आप दूसरे देश को बयान कीजिए। चौथी बंदी की दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो भारत को धर्मों में हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोलना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 16 दिसंबर 1971 सबको याद है, विजय दिवस, जब आपके 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था और आपने एक एग्रीमेंट साइन किया था, इसमें जनरल न्याजी जी ने एग्रीमेंट में साइन किया था। और एग्रीमेंट की वजह ये थी कि आपने जो बांग्लादेश में 30,000 लाख से ज्यादा 30,000 लाख से ज्यादा जो बांग्लादेशियों को मारा और 4 लाख से ज्यादा जो
बेटियों और माँ के साथ जो रेप किया है, उसको देखते हुए आप इस तरह के बयान देते हैं। इट्स रियली नॉट गुड। आप एक फॉरेन मिनिस्टर है, आपको देश के भले के लिए सोचना चाहिए, आपको एक रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, बट इस तरह की भाषा आपके मुंह से शोभा नहीं देती। और मुझे लगता है कि भारत, देखिए हम तो बड़े सरल वाले देश है कि हम तो सिर्फ आपसे माफी मांगना चाहेंगे, आप माफी मांग लीजिए। अगर आप चाइना के जैसा बोल देते ना तो कम्युनिस्ट आर पार हो जाता, और आप जिस हालत से वो भी नहीं रह पाते। संजीव वर्मा जी, आपने सुना ना मनोज जी का, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप सीधे पाकिस्तान की बात कहां आपने कांग्रेस पे ला दी, और कांग्रेसी प्रवक्ता ने उस बात का विरोध किया जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर रहमान, पाकिस्तान बड़ी बुरी स्थिति है, अराजकता का माहौल है, आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं सारा ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये भाषा का उपयोग किया हो? डॉक्टर रहमान, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं। वहाँ की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और दिमागी स्थिति भी ठीक नहीं है पाकिस्तान के लोगों की जी। जो नाजेबा शब्द उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोले हैं, उसके लिए तो वो नाकाबिले बर्दाश्त शब्द है। उनको तुरंत जो है माफी मांगना चाहिए और बिल्कुल खुले दिल से माफी मांगना चाहिए। मैं देख रहा था जो शब्द उन्होंने बोले हैं वो बिल्कुल नाजेबा, वो किसी भी हालत में बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन खुद ये कसाई की तरह वहाँ का जो उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है, पाकिस्तान में कोई सिस्टम नाम भी देना उनको ठीक नहीं है, कसाईयों से भी ज्यादा बुरी हालत उन्होंने बना रखी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अगर इस तरह के शब्द बोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर रहमान साहब, आप कई बार उन लोगों के साथ डिबेट पे बैठे हैं, कुरान के एक एक पैरे को आप जानते हैं, एक एक पन्ने को आप जानते हैं, कहीं ये लोग इस ग्रंथ को और इस समाज को, जो मुस्लिम समाज है, उसको बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान में जो एकता धीरे धीरे लाइन पे आती है उसे बिगाड़ने का काम तो नहीं कर रहे हैं? ऐसी हरकतें की जा रही है। एक्चुअली ये दिमागी दिवालिया हो चुके हैं, इनके पास सोच तो है नहीं और आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल ही बदतर से भी ज्यादा बदतर है। आप जानते हैं इस बात को। इलेक्शन वहां पे नजदीक है, अब उन्होंने सस्ती जो है लोकप्रियता लूटने के लिए विदेश मंत्री ने एक टुच्चा बयान, उसकी कोई हैसियत औकात भी नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने के लायक नहीं है। उसने इतने नाजेबा शब्द कहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज उस तक पहुंचे और मैं उसके सवालों का जवाब दूं। काश सामने आके अगर इस तरह का बोलेंगे तो जुबान मुंह में से निकाल ली जाएगी। नाजेबा हरकत है, बिल्कुल नाजेबा शब्द है, ये देखिए लेना चाहिए शब्द उनको। संजीव वर्मा जी, ये जो हमारे देश में बार बार रह करके समाज के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटवारा की बात की जाती है, उसी में डॉक्टर रहमान साहब हैं। आपने सुना उनका किन शब्दों में निंदा की है और किन चीजों की मांग की है? संजीव वर्मा जी। संजय जी देखिए, जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं जी, वो राष्ट्र प्रथम जी की अवधारणा के साथ चलते हैं। और जैसा डॉक्टर रहमान साहब ने जी अपना बयान दिया, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और बल्कि हम 135 करोड़ जो भारतवासी, जो भारत में हम लोग निवास करते हैं, हम सबको एकजुट होकर, यदि बाहर का कोई भी मुल्क या बाहर की कोई भी इस प्रकार की शक्ति जो हमारे देश को विखंडन की तरफ ले आना चाहती है या हमारे देश की तरफ तिरछी निगाह करती है, हम सबको एकजुट होकर उस ऐसी घिनौनी ताकतों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। उनको सबक सिखाने के लिए एक मैसेज देना चाहिए कि भारत की ओर जो भी अपनी दृष्टि को तिरछा करेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और भारत का चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति प्रांत का कोई भी व्यक्ति हो, हम सब एक हैं, इंटैक्ट हैं और हमेशा रहेंगे। और चलिए आप ही को बात को आगे लेते हैं संजीव वर्मा जी। जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है और आपके सामने आपके पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को हर समय कोसती रहती है और आपके विषयों को उठाती रहती है, जो आपने कहा, तो कांग्रेस के द्वारा जो आप पे हमला किया जाता है, कहीं उसी का सह पाकर के पाकिस्तानी इस मंत्री ने ऐसा तो नहीं किया है? देखिए, मैंने जैसा भी बोला, पक्ष है विपक्ष है। हम पक्ष कोई अच्छे काम करता है, विपक्ष उसको अपनी एक ड्यूटी मानकर कि हमने इसका विरोध ही करना है। क्योंकि जो हमारा विपक्ष है, कई बार वो इसको अपना एक ड्यूटी का एक अंग मान लेता है कि हमने हर चीज का विरोध करना है। हाँ, देश के अंदर का कोई भी मामला है, आपका अधिकार है, आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप उसको अपोज करिए।
लेकिन जब बात आती है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मान सम्मान और स्वाभिमान पर, या अपने देश के मान सम्मान और स्वाभिमान पर, तो ऐसी स्थिति में हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और एक सेकंड, और इसका एक बड़ा उदाहरण, जब 1971 का बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, उस समय माननीय स्वर्गीय अटल, जब उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा की एक संबोधन करके उनको पुकारा था, तो मैं सोचता हूँ ये जब अप्रिशिएट करने की बारी हो तो पक्ष और विपक्ष सब सुन के अप्रिसिएशन भी करना चाहिए। सही बात है। मनोज जी, आपने देखा होगा कि पूरे देश के साथ देहरादून में भी बहुत मजबूती से विरोध हुआ, तो इस विरोध में कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए सर, जब मैं इस डिबेट में आया तो मुझे पता है कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा जब एक देश दूसरे देश पॉलिटिकल मुद्दा देखिए सर, इस डिबेट में स्टार्टिंग करने की मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कहा गया, पहले भी कहा गया, नेहरू जी के टाइम पे भी कहा गया, तभी भी देश एक टुगेदरनेस बोल सकते हैं, एक साथ खड़ा था और उसने लड़ा है। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि जब एक देश ना दूसरे देश के प्रति या दूसरे देश के लिए टांग खींचने की कोशिश करे, दूसरे देश की, या उसके लिए कुछ गलत बोलने की कोशिश करे, तो आप ये समझ लीजिए कि देश सही दिशा में जा रहा है। और ये आज से नहीं जा रहा है, ये जब से आजादी मिली है तब से ज्यादा 1857 से, जब अंग्रेजों का राज था और जब हमने अंग्रेजों को भगाया, तब से चलता आ रहा है। और जब किसी देश ने दूसरे देश की टांग खींचने की कोशिश की है, मेरा ये हमेशा से मानना है, चाहे वो भारत हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा से देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज जो सर ये पॉलिटिकल टांग खींचना नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखाया हो, भारत को आज कहां पहुंचाया हो, उस शख्स के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि हकीकत में राजनीतिक, अगर उसका खुद उस व्यक्ति की राजनीतिक ऊंचाई देखी जाए तो कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी बात कही है, तो हमारी समझ से सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको भी उतरना चाहिए। देखिए सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कांग्रेस खड़ी है। देखिए, जब इस तरह के मुद्दे निकल के आए हैं, कांग्रेस ने हमेशा एकजुट होकर लड़ाई की है, चाहे कारगिल की बात कीजिए, चाहे 71 की बात कीजिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात कीजिए। देखिए सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जिन्होंने अपने नाना जी से भी नहीं सीखा, जिन्होंने अपनी माँ से भी नहीं सीखा, कि किस तरह के बयान उन्होंने यूएन में दिए थे और किस तरह का हालत उनका लास्ट में हुआ। हमने देखा कि उनके नाना जी को फांसी चढ़ाई गई और रावलपिंडी में उनकी माँ को गोली मारी गई। इस तरह के बयान अगर आप देते हैं किसी देश के प्रति, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट रिकमेंडेबल, इट्स नॉट गुड, इट्स फेयरफुलनेस, या फिर हम कहेंगे कि डिग्रेडिंग है, अपमानजनक है। मुझे मनोज, आप बड़ी नजदीक से इन सब चीजों को समझते हो, कहीं जो पाकिस्तान की स्थिति है उससे ध्यान भटकाने के लिए दूसरे एक सगुफा टाइप का या इस तरह का बयान तो नहीं छेड़ दिया सर? ये सबका ध्यान, ये देखिए सर, मैंने बोला ना, इकोनॉमी है नहीं, इनके खुद की आर्मी के बीच में आपस में बनती नहीं है, मिस रूल चल रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा इन्होंने खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। देखिए, BBB वाली पार्टी है और इनसे हुआ कुछ नहीं, इकोनॉमी इनकी पूरी की पूरी डाउन चल रही है, जैसा कि हम लोगों को पता है। चाइना तो इनकी मदद कर रहा है, अच्छा इन्होंने चाइना के लिए नहीं बोला, नहीं तो अभी तक तो ये बोलने के लायक भी नहीं रहते। वो तो हम लोग भारत है, जो हम सज्जन इंसान है, जो सिर्फ हम आपको कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए। अब सवाल ये है कि माफी मांगेंगे तो बात बन जाएगी आपकी, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को, लेकिन मनोज, माफी मांगने से कैसे काम चलेगा? देखिए सर, इस शख्स के माफी मांगने से चलेगा? इनके प्रधानमंत्री को सामने आकर के, इनके पार्टी के अध्यक्ष को सामने जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देखिए, पार्टी के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनके चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, सबको आके ये जरूर कहना चाहिए कि हम लोग इस तरह के बयान के लिए मूव फॉरवर्ड नहीं करते हैं, हमें एक रिलेशन क्रिएट करना। और देखिए सर, चाहे आजादी की बात से देखा जाए, एक वर्ड होता है हमारे, आपने भी सुना होगा कि टेरर एंड टॉक विल नॉट गेट टुगेदर। अगर आप टेरर भी करेंगे और आप बात करने की कोशिश करेंगे तो वो एक साथ नहीं हो सकता है। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो एक रिलेशन कभी भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। हमारे भारत में आज भी मुस्लिम और हिंदू भाई की तरह रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं। हम अपने देश की समस्या तो सुधार नहीं पा रहे और दूसरे देश के लोगों को भड़काने में लगे हुए, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट गुड। डॉक्टर रहमान साहब, बड़ी मुश्किल से एक माहौल दोस्ती का, दोस्ताना का सब कुछ बनता आता है, तो के बीच में इस तरह की जो लोग सामने आते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि चाहते ही नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की थोड़ी सी भी नजदीकियां बढ़े? उनके पास सर सोच ही नहीं है, और हम क्यों उनका जिक्र करें, हमारे तो ये समझ नहीं आती। हम मुसलमान उनसे
क्वांटिटी में भी ज्यादा है देश के अंदर। और हमारा देश तो सब जन्नत है, स्वर्ग है, और वो तो नापाकिस्तान है, वो पता नहीं किसने नाम रखा था उसका। तो मैं चाहूंगा कि ये जो बिलावल जरदारी भुट्टो है ना, ये एक्चुअली खानदानी क्रिमिनल है ये लोग। इनका मैं बैकग्राउंड देख रहा था, इसके फादर भी डांगुरा है, आसिफ अली जरदारी, उसको भी राष्ट्रपति बना दिया गया वहां पर। और इसकी जो मदर थी वो भी, बस मैं नहीं कहना चाहूंगा उनके बारे में कुछ। लेकिन बिलावल भुट्टो को ये नाजेबा शब्द और नाजेबा जो बयान उन्होंने दिया है ना, ये हमारी आन बान शान है प्रधानमंत्री देश के, और ये देश हमारा सर स्वर्ग है। इसके बारे में अगर कोई गलत बयानबाजी करेगा या गलत नजरें दिखाने की और उठाने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। परंतु कई बार उन्हें धूल चटा चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इन सब के बाद भी चाहे खेल हो, हम इनके साथ खेलना चाहते हैं, चाहे फिल्मी दुनिया के कार्यक्रम हो, हम इनके साथ करना चाहते हैं, इनके लोगों को बुलाते हैं, हमारे लोग इनके यहाँ जाते हैं कुछ लोग, तो इन चीजों को कैसे देखा जाए? हम लोग स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं। अब देखिए, हम तो नहीं चाहेंगे कि कोई भी नरक में जाए, हम तो ये चाहेंगे कि वो स्वर्ग में आए और अच्छा जीवन जो है दुनिया में जिए, और इस दुनिया में अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके इस दुनिया से जाए। वो ये तो डिस्टर्ब करते रहते हैं। मैं तो मानता ही नहीं है कि कौन से धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म तो ये सिखाते ही नहीं है। सही बात। संजीव वर्मा जी, अब आपने देखा भी होगा और सुनते भी होंगे कि हम लोग साथ खेलेंगे, भले इंडिया में ना खेलें, पाकिस्तान में खेलें, लेकिन भारत पाकिस्तान आपस में खेलेगा। आपने सुना होगा वहां के संगीतकार यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहां जाते हैं, तो क्या इस प्रथा पे भी रोक लगानी चाहिए? इसका बहिष्कार करने की जरूरत आन पड़ी है? संजय, देखिए, व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में रहने वाले जो वहाँ के नागरिक हैं उन सभी की ऐसी क्रूर सोच होगी। उसमें अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और बहुत बुरे लोग भी हैं, और वो नजरिया सेट उन लोगों को करना चाहिए। और अब आप ये देखिए, जो अपने देश में जहाँ ऐसी भुखमरी है, जहाँ 250-300 रुपए किलो आटा बिक रहा हो, सब्जियों की बुरी हालत हो, खाने के लाले पड़े हो, और वो कह रहे कि कश्मीर हमारा है। अरे भाई, जो तुम्हारा है पहले उसमें जिंदा उसी पे है। कश्मीर का मुद्दा लेकर के ही तो जिंदा है ये। अरे पहले उन्हें तो पाल लो, जो अपने पास है उन्हें तो पाल लो। ये जो एक आज बेहतर जीवन जी रहे हैं, उनको भी नरक में डालने की आप लोगों ने मंसूबा पाल रखा है। तो मैं सोचता हूँ, जो कश्मीर के लोग जो दिग्भ्रमित थे जब से धारा 370 हटी है, उसके बाद वो लोग समझने लगे कि आज तक हम नरक का जीवन जी रहे थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के द्वारा और एक उनकी जो एक पॉजिटिव सोच है, उसके द्वारा आज हम एक मुख्य धारा में हम लोगों को जीने का एक अवसर मिला है। आज हम डेवलपमेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। आज नई नई योजनाएं, परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर लग रही हैं, और वहां का जो युवा भटका हुआ था, जिसके हाथ में पाकिस्तान के द्वारा और हमारी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा एक आपसी कोलिशन के चलते उनके हाथों में जो पत्थर दिए जाते थे, आज उनके हाथों में कलम दी गई है, आज उनके हाथों में लैपटॉप है। आज एक विकास के पद पर वो लोग आगे बढ़े हैं। सही बात है जी। मनोज जी, क्या आज एक सीधी लाइन खींचने की जरूरत आन पड़ी है कि ये जो दुर्मूल रवैया होता है कि हम दोस्त भी हैं, हम दुश्मन भी हैं, हम भाई भी हैं, बंधु भी हैं, तो क्या सीधे लाइन की जरूरत आ चुकी है? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि जब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो हम ऑर्गेनाइजेशन को गाली देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से अच्छा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको बदनाम करते हैं, और ये वही लोग हैं सर जिनके बयान हम लोग देख रहे हैं, वही है जिन्हें कुरान की कोई नॉलेज नहीं है और ये कुरान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। ये हमें समझा रहे हैं कि भैया भारत में ऐसा है लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है। ये कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि इनकी खुद की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, ये अपने आप को बचाने के चक्कर में इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ, इन्होंने जो कहा बहुत गलत था। हमारे प्रधानमंत्री जी के या किसी भी देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जब इस तरह की बयानबाजी की जाएगी, इस तरह के अशब्द आप यूज करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी देश हमेशा से खड़ा रहेगा अगेंस्ट में उस देश के लिए जो इस तरह की बयानबाजी करेगा। देखिए, आप अपना देश संभालिए। मैं सब ये कहना चाहता हूँ, आप भारत की चिंता ना कीजिए। एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश हमेशा से भारत ने की है, लेकिन आप हमेशा से
पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और है। तो इस तरह की चीजें हमेशा से हमें प्रोबेबिलिटी में रखती है कि हम कैसे इन पे विश्वास करें सर। मनोज कई बार देखने को मिलता है कि भारत की जो सरकारें होती हैं वो पाकिस्तान को उस नजर से नहीं देखती जिस नजर से पाकिस्तान देखता है। लेकिन आज जो हरकत हुई है, अब उस पे क्या भारत को भी अपना रुख बदलने की जरूरत है? देखिए सर, भारत को बदलने की तो जरूरत है। उन्हें ऐसा पूरा, जैसा हम लोग कहते हैं सर, देखिए पाकिस्तान हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिस पर आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। हम हमेशा प्रोबेबिलिटी में चलते हैं कि हमें मैच कराना है नहीं कराना है। हमने बैन कर दिया कि पाकिस्तान हमारे प्लेयर नहीं जाएंगे। द ओनली रीजन इज कि जिस तरह का टेरर वहां के लोग देख रहे हैं, वहां की जनता देख रही है, वहां की सरकार को भी पता है कि किस तरह का टेरर वहां पे चल रहा है। इंसान खुला, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इंसान को बोलने का हक है सर भारत में। यहाँ पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने सामने अपनी बातें रख सकते हैं। क्या पाकिस्तान में रख सकते हैं? क्या आप चाइना में रख सकते हैं? वो तो आपसे तुला नहीं दे रहा रिलेशन, और आप रिलेशन खराब करना चाहते हैं एक देश के लिए। देखिए भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है, जब जब कोई भारत में आया है, चाहे रोहिंग्या की बात करो, चाहे हमेशा से वेलकम किया गया है। चाहे आप वेलकम करते, देखिए चाहे देखिए सर, हम वेलकम, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा, मेरी बात तो नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं सर, आपने शायद वो कहानी लिखी है रोहिंग्या की, आपने बात करी कि आपने वेलकम किया होगा, लेकिन वो जहां से आए थे हम उनको वहीं सवाल ये नहीं है। जब वो भाग के आए थे, जब उन्हें निकाला गया था, तो भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जो हमेशा से वेलकम करता है लोगों का, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, तो हमेशा से एक वेलकम करते आया है। भारत ने कभी भी किसी के लिए, मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी नेगेटिव चीज कही, लेकिन जिस तरह के बयान यहाँ निकल के आ रहे हैं, इट्स नॉट गुड सर किसी भी देश के लिए। मुझे लगता है आपको अपने डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। ये फालतू के जो आप एजेंडा चला रहे हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आगे चल के हम पाकिस्तान का नाम सुनेंगे। डॉक्टर रहमान साहब, ये जो पाकिस्तान के कुछ नेताओं के अधिकतर नेताओं की जो हरकतें होती हैं, उससे क्या हिंदुस्तान का भी मुस्लिम आहत होता है? उसे भी लगता है कि पड़ोसी मुल्क जिसकी कोई औकात नहीं, वो अभी हिंदुस्तान पे रह के इस तरह की हरकतें करता है, तो उससे क्या आप लोग भी आहत होते हैं? नहीं, हम बिल्कुल आहत नहीं होते। हमारे और उनके जीने में जमीन आसमान का फर्क है अंदाज में। वो जो है बवाले पे और आतंकवाद पे और कट्टरता पे यकीन रखते हैं, और हम इसका विरोध करते हैं। हम बवाला चाहते ही नहीं किसी भी तरह का। जब हमारा देश इतना सुंदर है, हम लोग इतने प्यार से यहाँ पे रह रहे हैं, तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि मुझे अपनी जुबान से तो उस देश का नाम भी नहीं लेना चाहिए। इस देश में सर कमी क्या है बताइए? तो इस देश में हमें मान सम्मान मिलता है, सर आंखों भी इस देश में रखा जाता है, और ये तो कहीं हम उनसे अपने आप को कंपेयर क्यों करते हैं? मेरी ये समझ नहीं आती बात कंपैरिजन की नहीं है। हाँ, रहमान साहब, कंपैरिजन की नहीं है, हमारे लायक नहीं है। जब कोई आदमी, देखिए इसने क्या, इस इशू में क्या है कि जमीन से इसने सूरज पे थूका है, और ऐसी हरकतें की गई हैं, तो कम से कम आदमी चर्चा तो करेगा। क्योंकि कुरान में भी हमारी समझ से ये चीजें नहीं लिखी गई है कि किसी मुल्क के मुखिया को इस तरह के भाषा का उपयोग करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखी गई है। और ये जो ये मुसलमान कहाँ है बिलावल भट्टो? आप इसका बैकग्राउंड तो उठा के देखिए सर। मैंने देखा है, इनके जो फादर है उनको देखिए, वो डाकू रहे किसी जमाने में वहाँ पर सिंध जो राज्य है, वहाँ के डाकू रहे, वो बहुत बड़े भाई, वो भी किसी देश के मुखिया परिवार से। आतंकवाद का सर कहाँ कोई धर्म मजहब होता है? इमरान खान भी एक प्रधानमंत्री था देश का, उसने कभी हमारे देश के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में गलत नहीं बोला है। वो जानता है ना इंटरनेशनल लेवल पे सोच क्या रखना पड़ती है, शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ये तो बकौल आपके टुच्चे किस्म के लोग हैं, और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अगर इस तरह से ये बयानबाजी करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो शब्द में दोहराने भी नहीं चाहता जो इन्होंने शब्द दोहराए हैं। सही बात है, उसकी जिक्र मैंने भी इसीलिए मैं डिबेट कर रहा हूँ आधे घंटे से ज्यादा उसी विषय में कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस शब्द को मैं नहीं ला सकता। खानदानी क्रिमिनल है सर। जी, ये सिर्फ जो नफरत की बात करते ही है। ये नफरत की बात करते ही, अच्छाई की बात इनसे नहीं आती है। संजीव वर्मा जी, जो आप लोगों की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कहीं न कहीं पाकिस्तान सॉफ्ट कॉर्नर में कभी कभी दिखता है। अब तो क्या ये जरूरत आन पड़ी है कि पाकिस्तान का पूरी तरह से बायकॉट किया जाए? संजय जी, देखिए, हमारी नीतियां हमेशा इस प्रकार के रही हैं कि पड़ोसी से एक अच्छे संबंध, एक दोस्ती वाले संबंध हम लोग बनाए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो पहली बार 2014 में हमारी सरकार बनी केंद्र की, तो उस समय उन्होंने ये प्रयास किया कि अपने सभी पड़ोसी देशों को
आमंत्रित करें, और उन्होंने ऐसा किया जी। एक सबसे दोस्ताना संबंध अच्छे बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों की एक सोच या मानसिकता, फितरत कह सकते हैं हम इसको, ये फितरती लोग हैं। इनको जितना भी हम सर पे बिठाने का भी प्रयास करेंगे तो ये कोई ऐसी हरकत कर जाएंगे कि तो अगले क्षण जो इनकी हैसियत है उस पर ही लेकर आना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी आपने कहा था हिंदू मुसलमान वाली बात, तो देखिए जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस लाइन पे काम किया है, और जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, सब में सभी वर्गों को, सभी धर्मों को एक समान आदर देने का हम लोगों ने काम किया। चाहे आवास योजना हो, गैस योजना हो, बिजली योजना हो, पानी की योजनाएं हो, चाहे अन्य लाभ देने की योजनाएं हो, और चाहे अन्य योजना हो, चाहे कोरोना काल में भी आप देखिएगा तो आज हर व्यक्ति देश स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो एक छवि उभर के आई है, जो एक मतलब एक मैं अब कैसे उन शब्दों का इस्तेमाल करूं कि विश्व स्तर पे भी आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई भी बड़े से बड़ा काम हो तो उसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी करें। और मैं सोचता हूँ सब लोगों को इस जो छवि है उसको और ज्यादा अच्छे से आगे पेश करने की आवश्यकता है, और मैं सोचता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी लोग चलिए मुद्दे से हट के, जैसा आपने कहा थोड़ा सा मुद्दे से हट के मनोज जी से मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम अंतिम चरण में हैं आज की बहस के। ये तो कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुस्लिम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग इनको निशाने पे लेते रहते हैं सर। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ने नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। मेरा ये मानना है कि इनके अलावा अगर कोई दूसरे भी प्रधानमंत्री होते तो हर कोई उनका सपोर्ट करता। अगर कांग्रेस के भी लाइक मनमोहन जी भी होते, उनके लिए भी कुछ कहा होता तो ये भी हमारा सपोर्ट करते। देखिए मुद्दा ऐसा है ही नहीं कि आप इसे कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी कीजिए। ये हमें एक ऐसा मुद्दा है जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा बयान आया जो भारत के खिलाफ बोल रहा है, एक ऐसा बयान आया जो भारत को दिखाने के लिए किया गया। हमें उसके प्रति खड़ा होना है, हमें उस इंसान के प्रति खड़ा होना है जिसने कोई मेहनत तो की नहीं और कुर्सी से मिल गई, ग्राउंड लेवल पे उसने काम नहीं किया, उसे पता नहीं कि एक्चुअली में हमारे यहाँ के लोग किस तरीके से अपना अपना घर संभाल रहे हैं, किस तरीके से अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। वो तो उनसे हुआ नहीं, एक तरह का बोलते हैं सर एक आइडल बयान दे दिया है। मुझे लगता है कि देखिए सर, पहले जमाने में एक वर्ड होता था यूटोपिया। यूटोपिया होता था एक आदर्श देश। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे राजा बहुत बुद्धिमान है तो राजा बुद्धिमान है, तो ये अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं और इस सामने वाले को पता नहीं क्या समझ है। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप बुद्धिमान है तो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला बेवकूफ नहीं है। अगर आप लाइक नेगेटिव चीजें कहेंगे तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा, और जो लिया जा रहा है दोनों पार्टी की तरफ से। लेकिन मनोज ये चीजें रुकती नजर आ रही है आपको? देखिए सर, ये आजादी के बाद से ये बयानबाजी चलती रहती है। मेरा तो ये मानना है कि देखिए हम लोग जिस स्तर पे भी आगे गए, बयानबाजी अलग है, शब्दों देखिए शब्दों का चयन देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वह शब्दों का चयन जो आज हुआ है वो हमारी समझ से अभी तक का सबसे गंदे शब्दों में माना जाएगा। तो इसलिए ये बयानबाजी की तरह से नहीं माना जा सकता। देखिए सर, मेरा तो क्योंकि मैंने भी वही डिबेट जो बोल रहे थे वो सब मैंने सुना। मुझे लगता है कि देखिए एक माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। माफी मांगेंगे तो देखिए माफ करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। और देखने वाली बात तो ये है कि अब आने वाले समय में या जिस तरीके के भारत में चल रहा है, आने वाले समय में जो हमारे भुट्टो जी हैं, क्या वो अपोलोजाइज करेंगे भारत के प्रति या नहीं करेंगे, वो देखने मुझे लगता है कि वो देखने वाली बात है। डॉक्टर रहमान साहब, इनकी मैच्योरिटी, क्योंकि भुट्टो परिवार राजनीतिक परिवार माना जाता है, चाहे मां रही हो चाहे इनके नाना रहे हो, सब लोग एक राजनीतिक परिवार से निकला हुआ व्यक्ति इस तरह की भाषा का जब उपयोग करता है तो उसकी राजनीतिक जो दूरी है या राजनीतिक जो सफर है कितने दूर तक माना जाए? ये जमीनी लोग तो भुट्टो परिवार के हैं नहीं, विरासत में सब कुछ इनको मिला। बकौल आपके नाना प्रधानमंत्री रहे, माँ प्रधानमंत्री रही, पापा राष्ट्रपति रहे, तो सब कुछ विरासत में मिल गया। जमीनी चीजों को ये जानते नहीं है, तो सोचता कि आसानी से सस्ते वे में जो है उल्टा सीधा बयान देके थोड़ी बहुत शोहरत जो है लुटा इकट्ठी कर लिया है।
तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। जमीनी इंसान अगर होते तो कभी भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। हालांकि इनकी मदर ने कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं की है। जी 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 जी। लेकिन ये बिलावल भुट्टो जो जमीनी इंसान नहीं है। चलिए अंतिम प्रश्न संजीव वर्मा जी से ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, आज आप सड़कों पे थे और आपके प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री और सभी नेता विरोध दर्ज कराए हैं। अगर यह शख्स जिसने आज जो गुस्ताखी किया है उस पे माफी नहीं मांगता तो आपका ये आंदोलन कहां तक जाएगा? संजय, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस लाइन पर हम लोग चलते हैं कि पहले तो अच्छे संबंध रखें, अच्छे पड़ोसी से हमारे अच्छे संबंध हो, लेकिन यदि उसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो इनको ये भी ध्यान करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात को उठाना चाहिए। धन्यवाद संजीव वर्मा जी, धन्यवाद मनोज जी और धन्यवाद डॉक्टर रहमान साहब। भुट्टो परिवार राजनीतिक परिवार माना जाता है और जो राजनीतिक परिवार से आता है वह कभी भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करता। अगर बिलावल ने की है तो हमारी समझ से उनका उद्देश्य कुछ और रहा होगा और उस उद्देश्य को अगर जानने की जरूरत है तो हमें ये जरूर जानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इस समय मालियत क्या है, वहां की स्थिति क्या है, वहां भुखमरी की स्थिति है, वहां जिस तरह से अराजकता का माहौल है, कहीं उसके ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं किया गया। और अगर ऐसा किया गया है और उसके लिए निशाना या माध्यम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बनाया गया है तो पाकिस्तान को कहीं से भी माफ किया जाना उचित नहीं लगता। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।